Hello, good morning all. Myself Dr. Uttara Chandrawat, District Nodal Officer from Government College, Kota. I welcome you all in this e-lecture on the topic stress and stress management. So before going into the details of this topic, I would like to tell you that this week, in the first week of October, we are having World Mental Health Week. So let's find about its history. You see, Mental Health Awareness Week was established in 1990 by the US Congress to educate and increase the awareness about mental illnesses. ठीक है ना? तो every year it is celebrated since then during the first full week of October. So every year 10th October is celebrated as the World Mental Health Day. That is the day for global mental health education, awareness and advocacy against social stigma. In India, we celebrate this week from the 4th of October to 10th October. So you see, the theme for this year is the mental health for all. आपको पता है कि nowadays the world is experiencing the impact of the current global health emergency due to COVID-19 that has also impacted on the mental health of millions of people. We know that the levels of anxiety, fear, isolation, social distancing and restrictions and the uncertainty about the future, emotional distress experienced, it has become widespread as the world struggles to bring the virus under control and to find the solution. हमें पता है कि जनवरी से ही हम लोग जो है एक तरह का फियर में जी रहे हैं, एंग्जाइटी है, चिंता है, अलगाववाद की जो हम लोग आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, है ना? हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है कि कीप डिस्टेंस एंड देयर आर सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस. हम अपने भविष्य के बारे में बिल्कुल भी निश्चित नहीं हैं, है ना? और एक तरह से जो है हम इमोशनल डिस्ट्रेस को फील कर रहे हैं. तो ये फिनोमेनन केवल हम डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे नहीं है. दिस हैज़ बिकम अ ग्लोबल पैंडेमिक एज यू ऑल नो अबाउट दिस. और हम बात कर रहे हैं कि कब वैक्सीन आएगी और कब इसका हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोग्राम को, और किस तरह से ये जो है लोगों को इस कोविड-19 की का जो स्ट्रेस है उससे हम बाहर निकल पाएंगे. सो मेंटल हेल्थ इज़ अ ह्यूमन राइट. इसको हम क्या कह सकते हैं कि इट इज़ अ ह्यूमन राइट एंड इट इज़ द टाइम फॉर दिस मेंटल हेल्थ टू बी अवेलेबल फॉर ऑल. तो you see, the quality accessible primary health is the foundation for universal health coverage, and it is urgently required as the world grapples with the current health emergency. So we need to make mental health a reality for all, for everyone, everywhere. सबके लिए और सब जगह पे हम चाहते हैं कि people should remain mentally healthy. So this justifies the theme for this year, that is mental health for all. Okay, now we move ahead. Yes, the international symbol for mental health awareness is green ribbon. So now we start with our topic, that what is stress. You see, stress जो है एक तरह का it is a mind and body's response or reaction to a real or imagined threat, event or change. ना तो जब हम बात करते हैं स्ट्रेस की तो हम पाते हैं कि स्ट्रेस जो है हमें बहुत ख़राब टर्म लगती है ना? एक बहुत ही ऐसा आवाज़ देता है जैसे कि बहुत ही स्ट्रेसफुल, हम कह रहे हैं बहुत स्ट्रेसफुल है ना? तो हमें जो है ये बात समझ में आनी चाहिए कि यह हमारा जो है किसी भी खतरे की या मांग की प्रति जो है हमारी शारीरिक और भावनात्मक प्रतिक्रिया है ना?
तो उससे क्या होगा कि हम जो है खतरा जो फील कर रहे हैं और जो 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 रिस्क हैं किसी भी थ्रेट से जुड़े हुए जो हमें अपसेट कर देते हैं, तो दैट इज़ द स्ट्रेस इज़ द रिएक्शन टू ऑल दोज रिस्क्स, ओके, एंड थ्रेट्स। तो जो अब बात आती है कि स्ट्रेसर्स क्या हैं। स्ट्रेसर्स जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी थ्रेट हो, इवेंट हो, कोई बदलाव हो, दे आर कॉमनली कॉल्ड स्ट्रेसर्स। जैसे कि हम जब अब कोविड-19 की में हम जी रहे हैं, तो हमें हर चीज़ से खतरा महसूस होता है। हमें पास में बैठे हुए हमारा जो फ्रेंड है, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हम उनसे जो है एक तरह से थ्रेटन्ड फील करते हैं कि कहीं इसको कोरोना तो नहीं है ना। हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग की बात आ रही है, तो दीज आर सॉर्ट ऑफ स्ट्रेसर्स। ठीक है, तो स्ट्रेसर्स कैन बी एक्सटर्नल in the form of thoughts, beliefs and attitudes, और they may be external। तो एक्सटर्नल में जैसे लॉस हो गया, कोई ट्रेजिडी हो गई फैमिली में, किसी भी तरह का सोशल चेंज आप जो है वो फेस कर रहे हैं। तो अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, इज इट ऑलवेज बैड? नो 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 नो, देर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रेसेस। देखिए, एक तो है यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस की जब हम बात करते हैं तो it is a kind of positive stress, and it occurs when the level of stress is high enough to motivate to move into action to get things accomplished. So this is a good stress, right? जैसे हमारे जब एग्ज़ाम आते हैं, है ना, तो एक तरह का स्ट्रेस होता है, एंड दिस स्ट्रेस कॉजेज अस एंड इट पुशेज अस टू स्टडी हार्ड, है ना। एग्ज़ाम के टाइम पे हम पढ़ना ही है, देयर इज़ नो चॉइस, है ना। सो हम वी आर ट्राइंग टू अचीव आवर डिग्री, सो दिस इज़ अ गुड स्ट्रेस। अनदर इज डिस्ट्रेस। तो दिस स्ट्रेस इज़ अ नेगेटिव स्ट्रेस एंड इट अकर्स व्हेन द लेवल ऑफ स्ट्रेस इज़ टू हाई। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है एंड द बॉडी एंड द माइंड बिगिन टू रिस्पॉन्ड नेगेटिवली टू द स्ट्रेसर्स, सो दिस इज़ द बेड स्ट्रेस। कैसे कि अब चिंता इतनी हो गई कि हम जो है पढ़ाई लिखाई भूल के एग्ज़ाम की जो स्ट्रेस हम फील कर रहे हैं, तो उसमें हम जो है इतना ज़्यादा चिंता करने लग गए कि जो हमने याद किया था वो भी हम भूल गए, और एग्ज़ाम के प्रीवियस नाइट पे हम बहुत बुरी तरह से घबरा रहे हैं, अपने पेरेंट्स को तंग कर रहे हैं कि हमें तो कुछ भी याद नहीं है ना। सो दिस इज़ अ नेगेटिव स्ट्रेस। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट कैन कॉज स्ट्रेस? एंड इट कैन बी कॉज्ड बाय फिजिकल डिमांड ऑन द बॉडी। अगर किसी को बीमारी है या कोई भी एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो ये एक तरह का ये दिस कॉजेज स्ट्रेस। और दूसरा क्या हो सकता है, बाय एनवायरमेंटल एंड सोशल सिचुएशंस विच आर इवेल्युएटेड एज पोटेंशियली हार्मफुल, अनकंट्रोलेबल और एक्सीडिंग आवर रिसोर्सेज फॉर कोपिंग ना। जब हम आसपास का जो हमारा वातावरण है और हमारी सामाजिक जो स्थितियां हैं, वो जब हमें जो है दे आर कॉजिंग stressful conditions for us, and we are not able to cope with that stressful conditions. Now we come to the next slide, that is the stresses for students. So this lecture is actually for all the college going students, so we will focus on the problems related to the students only. Now see what are the stresses for students. First is the adjustment problems. ठीक है, आपके जब आप व्हेन यू कम फ्रॉम स्कूल्स टू योर न्यू कॉलेजेस, तो आपको जो है एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम आती है। स्कूल में आपका एक अपना अपना अलग प्रिय ग्रुप होता है, आप वहाँ पे 10-11 साल 12 साल से लगातार पढ़ रहे होते हैं, तो वो आपको जो है एटमॉस्फेयर बहुत फ्रेंडली लगता है। और यहाँ पे टोटली न्यू एटमॉस्फेयर यू फेस, जहाँ पे कि टीचर्स रहे हैं और आपके जो क्लासमेट्स हैं वो भी आपके अलग हैं। सेक्शन वाइज आपको जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपके सेक्शंस बनाए जाते हैं, एंड एज़ पर द चॉइस ऑफ योर्स यू आर grouped into bio section, bio group and maths group,
So sort of that. So you have this kind of adjustment problem in the colleges. नेक्स्ट इज डिटेरियोरेटिंग स्कॉलिस्टिक परफॉर्मेंस. ठीक है, अब क्या होता है कि राजस्थान में जैसे कई जो है स्कूल्स हैं जहाँ पे कि बच्चे जो हैं मीडियम का जो है स्ट्रेस अपने ऊपर ले लेते हैं. कई बार बच्चे बहुत मेरिटोरियस होते हैं, बहुत अच्छा स्टूडियस होते हैं, लेकिन जब वो हिंदी मीडियम से ही जब यहाँ पे कॉलेज के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो उनको जो है उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है वह घटने लगती है ना. स्कूल में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 90% 95% तक मार्क्स लाते हैं, और यहाँ आके वो है कई बार जो है भाषा की प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो एकेडमिक परफॉर्मेंस उनकी गिर जाती है. कई बार नया पीयर ग्रुप होता है तो वो नए वातावरण में अपने आप को ढालने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इन सब में जो है वो एक तरह से डिस्ट्रैक्शन फील करते हैं, राइट. अनदर फैक्टर इज दैट फियर ऑफ फेलियर इन एग्ज़ाम्स. ठीक है, आपको एग्ज़ाम्स, हर एक किसी को लगता है एग्ज़ाम का प्रेशर आप फील करते हैं, तो ये लगता है कि एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, है ना. तो ये एक तरह का स्ट्रेस कॉज करता है. नेक्स्ट इज ऑफ कोर्स पेरेंटल प्रेशर एंड देयर एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, पेरेंट्स का एक जो है प्रेशर बच्चों पे रहता है, चाहे वो कहें या नहीं कहें, लेकिन उनकी एक एक्सपेक्टेशंस रहती हैं, उनकी डिमांड रहती है कि हमारा बच्चा टॉप करे क्लास को. तो बच्चों के लिए स्टूडेंट्स, चाहे वो स्कूल गोइंग हो या कॉलेज गोइंग हो, ये एक तरह का स्ट्रेसर है. पेरेंट्स का प्रेशर, अनस्पोकन प्रेशर, राइट. इन सबको हम डिटेल्स में और आगे लेंगे. नेक्स्ट स्ट्रेस कॉजिंग फैक्टर इज डाइवर्जन ऑफ अटेंशन टू अदर एक्टिविटीज़. कॉलेज, आप स्कूल से जब कॉलेजेस में आते हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शन हो जाता है ना. इंटरनेट एडिक्शन हो जाता है. सब्सटेंस अब्यूज़ की बात हम जब करते हैं तो कि ठीक है हमारा एक क्लासमेट जो है सिगरेट पी रहा है या कुछ किसी भी तरह का कुछ उसको एडिक्शन है कुछ भी, तो दैट इज़ सब्सटेंस अब्यूज़. एंड दिस सब्सटेंस अब्यूज़ इज़ अ वास्ट टॉपिक. इसको हम कभी बाद में कवर करेंगे. बिसाइड्स दैट यू गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय इंटरनेट, है ना. पेरेंट्स आपको मोबाइल अवेलेबल करवा देते हैं एंड मोबाइल पे यू हैव द एंटायर वर्ल्ड विद यू. तो ये एक तरह का जो है आप दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लग जाते हैं. ठीक है ना. तो जब पॉजिटिव स्ट्रेस है तब तक तो ठीक है, एंड देन वेन एवर यू आर नेगेटिवली getting affected by all these activities, then this is a stress causing factor. Next is communication problem with teachers and others. ठीक है ना. जब आप स्कूल में होते हैं तो यू डोंट फील अशेम्ड ऑफ आस्किंग एनीथिंग विद योर टीचर्स, क्योंकि वो आपके साथ काफ़ी सालों से हैं. और जब आप कॉलेज में आते हैं तो टीचर्स सारे नए हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं. कई बार आपको ये भी पता नहीं होता है कि आपका सेक्शन में जो आपका टीचर, कौन सा टीचर आपको पढ़ा रहा है. सो दैट इज़ अ कम्युनिकेशन गैप. ठीक है ना. एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से भी आप जब बात नहीं कर पाते क्योंकि कई बार भाषा की प्रॉब्लम आती है आपको, और आपको यू फील अशेम्ड कि हम जो है टीचर से पूछेंगे तो हमें दे विल स्कोल्ड अस कि आप अब तक कर क्या रहे थे ना. सो दिस इज़ अगेन अ स्ट्रेस कॉजिंग फैक्टर. नेक्स्ट इज लैक ऑफ पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ. आपको अपने जीवन का उद्देश्य ही कई बार अपन भूल जाते हैं ना. तो दिस इज़ अगेन स्ट्रेस कॉजिंग इवेंट. ठीक है ना. अब आप जैसे अगर हम कोविड-19 की सिचुएशन की बात करें तो सभी के मन में सबसे बड़ा सवाल क्या है कि जो है कंडीशंस कब सामान्य होंगी, है ना. अभी इसका कोई भी निश्चित उत्तर नहीं दे पा रहा है. कोई भी वैक्सीन के बारे में जो है आपको एश्योरेंस नहीं दे पा रहा है. तो इस तरह की अनसर्टेनिटी हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है. तो ऐसे समय में क्या है कि अपना टारगेट फिक्स कर दें. ठीक है ना. देखो, जो निश्चित है, जो हमारे हाथ में है, उस पर हम फोकस करें. ठीक है. इन्फेक्शन का खतरा तो आप ख़त्म तो कर नहीं सकते, लेकिन जब आप मास्क पहनते हैं और दूसरे आप उपाय अपनाते हैं तो आप अपनी अधिकतम सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं.
तो मास्क को लेके जैसे बच्चे बहुत चिढ़ते हैं कि मास्क से हमें बहुत ही ये जो है वी फील एनॉयड बाय पुटिंग ऑन द मास्क। तो मास्क को लेके खींचते रहने के बजाय हम अगर उसकी जो है अनिवार्यता को स्वीकार कर लें कि अनिवार्य है, हमें लगाना ही है, ठीक है ना। नो मास्क नो एंट्री इन एनी इंस्टीट्यूट और कॉलेज। तो अगर आप जो है अपना फोकस डिसाइड कर लेंगे कि भाई मास्क तो हमें पहनना ही है, तो इसमें क्या होगा, मन में ज़बरदस्ती कोई करवा रहा है उसका भाव घटेगा और उससे क्या है आपकी चिड़चिड़ाहट कम होगी, ठीक है ना। तो आप कोरोना के चलते क्या नहीं कर पा रहे हैं, इसकी जगह आप क्या सोचेंगे कि आप क्या क्या कर सकते हैं इस पीरियड में, है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें घर पे समय बिताना जो है वो बहुत अच्छा लगता है। तो आप कुछ जैसे अपना कुछ भी क्रिएटिव आप अपना जो है इस समय परफॉर्म कर सकते हैं। कोई अपना टास्क डिसाइड कर लें कि ये हमें करना है, राइट। तो मतलब जो है कि आप ये फील नहीं करें कि हमें होम आइसोलेशन की वजह से जो है हम अपने फ्रेंड से नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन आप अपने परिवार के साथ तो समय बिता पा रहे हैं। तो ये जो है अगर आप अपनी पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे तो आप बहुत अच्छा कुछ कंस्ट्रक्टिव कर पाएंगे, ठीक है ना। मीनिंग इन लाइफ से क्या मतलब रहेगा कि आप अपने क्रिएटिविटी पे जोर दें, ठीक है। कोई भी कंडीशन हो बच्चों, कोई भी सिचुएशन हो, उसमें इंसान का जीवन रुकता नहीं है और ना आपकी खुशियाँ रुकती है, ठीक है ना। तो अब देख लीजिए, आप अपने आसपास ही देख लीजिए कि आपके जो टीचर्स हैं वो मास्क लगा के आ रहे हैं, तो दे आर पुटिंग ऑन द मास्क विद मैचिंग कलर्स विद जो भी वो अपना ड्रेस पहन रहे हैं उससे मैचिंग जो है कलर पहन रहे हैं मास्क का। तो इसको मास्क को लेके ही लोगों ने जो है कितने प्रयोग कर लिए। कुछ डिज़ाइनर्स ने तो जो है वेडिंग ड्रेस के साथ ही जो है उसका मैचिंग एंड उसका जरी वाला मास्क जो है उसकी डिज़ाइनिंग शुरू करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। तो उसी काम को करने के लिए उन्होंने नए तरीके तलाश लिए, कोई नया काम शुरू कर दिया, किसी भी तरह का कोई भी। तो आप जो है कोई भी हालात हो अपने हिसाब से मोड़ के तरक्की की गाड़ी को रुकने नहीं दें, ठीक है ना। तो क्रिएटिविटी जो है आपकी वो आपकी खुशियों का मूल मंत्र है, ठीक है। आप हमेशा इस बात पे फोकस रखें कि आपका दिमाग जो है एक साथ क्रिएटिव और नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। क्रिएटिविटी यानी उम्मीद, समाधान की कोशिश, पॉजिटिविटी। तो जब हम पॉजिटिव अप्रोच रखते हुए कुछ सोचते हैं तो कोई ना कोई रास्ता हमें दिख ही जाता है ना। तो उससे क्या है कि जो स्ट्रेस है दिमाग से वो और जो नेगेटिविटी है वो छटने लगती है। तो बात यही है कि नेगेटिव स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, राइट। तो वी कम विद द नेक्स्ट स्ट्रेस कॉजिंग, दैट इज़ एटीट्यूड, है ना, जिसके बारे में मैंने आपको बताया पॉजिटिव या नेगेटिव। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, उसी से आपकी पर्सनैलिटी डिसाइड होगी, राइट। कि आप जो है कुछ लोग होते हैं कि नहीं सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा है। कई रिलेटिव्स की जो है वो दे हैव बीन इन्फेक्टेड बाय दिस डिजीज़ और सम अदर थिंग। स्ट्रेस कॉजिंग इवेंट कोई भी हो सकता है, लेकिन उससे क्या है कि आपको अपनी पर्सनैलिटी पे आपको उसको हावी नहीं होने देना है, राइट। नाउ नेक्स्ट स्ट्रेस कॉजिंग फैक्टर इज़ लैक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, ठीक है ना। आप जो है हमेशा प्रॉब्लम की तरफ ही आपका ध्यान जा रहा है, सॉल्यूशन की तरफ तो आप सोच ही नहीं रहे हैं, राइट। तो ये सब जो हैं दीज आर दी स्ट्रेसेस फॉर स्टूडेंट्स। तो इनको हम जो है डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। तो अब क्या है कि व्हाट हैपन्स व्हेन वी आर स्ट्रेस्ड, ठीक है ना। तो आपको पता है कि जो है कोई भी जब थ्रेट आता है तो हमारी सेंसेस जो हैं दे बिकम अलर्ट, ठीक है। और हमारी बॉडी से स्ट्रेस हार्मोन जो हैं वो जैसे एड्रेनलिन है, कॉर्टिसोल है ना, तो वो बॉडी का मेटाबॉलिज्म दे इंक्रीज द बॉडीज मेटाबॉलिज्म। हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है
मुंह सूखने लगता है, सलाइवा जो है इट ड्राइज अप, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म्स दे आर एक्टिवेटेड, एंड द बॉडी की जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम सफिशिएंसी इज सप्रेस्ड, स्लीप प्रोसेस इज ब्लॉक्ड, है ना, जो है नींद उड़ जाती है, इंसोम्निया जो है वो हम फेस करते हैं. नाउ वी कम टू द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस. क्या सिम्टम हैं स्ट्रेस के? तो पहले हम आते हैं कॉग्निटिव सिम्टम्स पे. कॉग्निटिव सिम्टम्स की जब हम बात करते हैं तो देखिए, हमें जो हमने याद किया हुआ है वो हम भूलने लगते हैं. सपोज़ आपको एग्ज़ाम का पेपर का स्ट्रेस हो रहा है कि कल हमारी परीक्षा है, तो आपने जो याद किया है अब तक वो आप भूल जाते हैं स्ट्रेस की वजह से. मेमोरी प्रॉब्लम्स यू फेस, एंड देन यू हैव इनएबिलिटी और डिफ़िकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग. ठीक है ना, आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं. पुअर जजमेंट, आप अपने चारों ओर की स्थितियों को प्रॉपरली जो है असेस नहीं कर पाते, जज नहीं कर पाते, है ना. एंड यू आर सीइंग ओनली द नेगेटिव एस्पेक्ट्स, केवल नकारात्मक सोच रख के आप चल रहे हैं. कॉन्स्टेंटली वरिंग अबाउट द सिचुएशंस. सो दीज आर सम ऑफ द कॉग्निटिव सिम्टम्स. नाउ वी कम टू द इमोशनल सिम्टम्स. क्या है इमोशनल सिम्टम्स? मूडीनेस. ठीक है ना, मूड हुआ तो पढ़ लिए, मूड नहीं हुआ तो आप जो है पढ़ाई छोड़ के, चाहे एग्ज़ाम सर पे हैं, आप जो है मूवी देख रहे हैं या टीवी के सामने टाइम अपना स्पेंड कर रहे हैं. ठीक है. इरिटेबिलिटी एंड शॉर्ट टेम्पर्डनेस. अब नेचुरली जब पेपर आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करेंगे या आपने जो भी आपका टारगेट है उस पर फोकस नहीं करेंगे तो आपका चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी, है ना. शॉर्ट टेम्पर्डनेस आपकी व्यवहार में आपकी झलक जाएगी. एंड यू फील एजिटेटेड एंड रिलैक्स नहीं रह पाते. ठीक है. फीलिंग ओवरवेल्म्ड, मतलब आपको कोई एक थॉट प्रोसेस है वो आपको जो है उसी से आप घिरे हुए रहते हैं. सेंस ऑफ लोनलीनेस, जैसा आप जो है अकेलापन फील करते हैं, डिप्रेशन फील करते हैं, एंड मतलब आप बिल्कुल उदास रहते हैं. ओके. तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनको. नाउ वी कम टू द फिज़िकल सिम्टम्स. तो फिज़िकल सिम्टम्स की जब हम बात करते हैं तो शरीर में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है ना, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं बच्चों को. पेट तो ख़राब होता ही होता है. नौजिया है, डिजीनेस है, आप मतलब किसी भी चीज़ में आपको खुशी नहीं मिलती है ना. चेस्ट पेन होने लग जाता है, कुछ बच्चों की धड़कन बढ़ जाती है. और इस तरह से अगर ठंड का मौसम है तो कोल्ड की शिकायत करेंगे पेरेंट्स से, तो पसीना आना है. तो ये जो है फिज़िकल सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के. नाउ वी कम टू द बिहेवियरल सिम्टम्स. नाउ व्हाट आर दीज? ईटिंग मोर और लेस, है ना, भूख ख़त्म हो जाती है या कुछ ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट ना. स्लीपिंग टू मच और टू लिटिल, या तो खूब सोए ही रहेंगे या बहुत कम, आपकी नींद ही उड़ जाएगी. आइसोलेटेड फ्रॉम अदर्स. ठीक है. तो दूसरों से मिलना भी पसंद नहीं करते इस समय, अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन आपको फेस करनी पड़ रही है तो, है ना. एंड मतलब इस तरह की जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप जो है इग्नोर कर रहे हैं. यूजिंग एल्कोहल, सिगरेट्स और ड्रग्स. ठीक है. आई होप यू आर नॉट फेसिंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. आपको जो है नर्वस हैबिट से होती है ना, जैसे कि जब स्ट्रेस फील करते हैं तो एक तरह से अपने नाखून चबाना शुरू कर देते हैं. तो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स कॉज्ड बाय स्ट्रेस. अब देखिए, अगर हम आपको जो स्लाइड पे जो एक कर्व दिख रहा है इसको ध्यान से देखें तो दिस इज़ द कर्व ऑफ स्ट्रेस वर्सेस परफॉर्मेंस. स्ट्रेस जब लो है, ठीक है, तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ रहा है. जैसे हम इसकी बात करें कि आपका जो एग्ज़ाम है ना, सर पे है, आपने जो है 4-5 महीने पहले आपको पता था कि भाई हमारा इस तारीख को इस महीने में एग्ज़ाम होगा. आपने जो है पढ़ाई शुरू करी, परफॉर्मेंस आपकी सुधरती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना, इट इंक्रीजेस. जब आपका स्ट्रेस लेवल जो है ऑप्टिमम होता है तो आपकी परफॉर्मेंस भी ऑप्टिमम होती है. सो यू कैन सी दिस ओवल जोन ऑफ ऑप्टिमम परफॉर्मेंस, राइट. समझ रहे हैं ना कि आपका जो है स्ट्रेस जब ऑप्टिमम लेवल पे है, व्हेन इट इज़ नॉट
affecting you negatively, rather it affects you in a positive way. आपकी स्ट्रेस आपने लिया, आपने पढ़ाई करी, आपने अपने पेपर की पढ़ाई करी, आपने जो भी आप कर रहे हैं आईआईटी मेडिकल या बीएससी आप ले रहे हैं, बीएससी की डिग्री को आप जो है परस्यू कर रहे हैं, तो आपने पेपर्स की तैयारी सही समय पे, स्ट्रेस आपको हुआ, आपने सही समय पे तैयारी शुरू कर दी, आपने मैक्सिमम कोर्स को कवर किया, तो यू विल हैव एन ऑप्टिमम परफॉर्मेंस एट द राइट लेवल ऑफ स्ट्रेस. अब आपने ज़्यादा चिंता कर ली, नाउ दिस इज़ द डी स्ट्रेस, दिस इज़ द नेगेटिव स्ट्रेस. तो आपकी जब स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा हाई हो गया कि नाउ इट इज़ आपको जो है नकारात्मक रूप से अफेक्ट कर रहा है, तो आपकी परफॉर्मेंस भी डिक्रीज होती जा रही है, एज यू कैन सी फ्रॉम द स्क्रीन. तो अपने को जो है स्टार्टिंग के ना अप टू ऑप्टिमम लेवल पे के ही स्ट्रेस को अपने को ध्यान में रखना है. नाउ वी कम टू द एग्जाम्पल्स. क्या होते हैं कुछ, जैसे जब भी बच्चा स्ट्रेस्ड फील करता है, बच्चा या बड़ा जो भी है, तो वो एक तरह से अपने बिहेवियर से, अपने इमोशन से इंडिकेट कर देता है ना. तो जैसे बिहेवियर की हम बात करें तो क्या इंडिकेशंस आते हैं? लैक ऑफ एंथुसियाज्म फॉर फैमिली, स्कूल एंड वर्क. अपनी फैमिली मेम्बर से मिलने पे उसको कोई उत्साह नहीं रहता है, स्कूल जाना ही नहीं चाहता, काम करना ही नहीं चाहता. उसकी ईटिंग हैबिट्स में देयर इज़ अ चेंज इन ईटिंग हैबिट्स, राइट. इंसोम्निया हो जाता है या हाइपरसोम्निया हो जाता है, या तो बहुत कम सोता है या ज़्यादा सोने लग जाता है, गुस्सा करने लग जाता है, एंगर एंड फटीग, बहुत जल्दी जो है थक भी जाता है. एंड देन वी हैव कॉग्निटिव इंडिकेटर्स. तो जब हम बात करते हैं कॉग्निटिव स्किल्स की, तो ये स्किल्स जो हैं दे आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द स्ट्रेसफुल कंडीशंस ना. पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंफ्यूज रहता है बच्चा, नाइट में गंदे सपने आते हैं ना, हाइपर विजिलेंस. सो नाउ वी कम टू द इमोशनल इंडिकेटर. कोई भी जो पर्सन है, इफ़ इज़ फीलिंग स्ट्रेस्ड इन अ नेगेटिव वे, तो उसको डरा डरा रहेगा, चिंता रहेगी, पैनिक्ड फील करेगा, कोई एजिटेटेड फील करेगा, डिप्रेस्ड रहेगा, या इस तरह से जो है वो इंडिकेट कर देता है कि हाँ, यस आई एम हैविंग स्ट्रेसफुल कंडीशन, आई एम फेसिंग स्ट्रेसफुल कंडीशन. सो what we find that stress is inevitable but suffering is optional. ठीक है, स्ट्रेस तो होगा ही होगा, उस कंडीशन को आप जो है अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन आप उससे कितना सफ़र कर रहे हैं, किस अप्रोच के साथ उसको स्ट्रेस को ले रहे हैं, दैट इज़ योर ऑप्शन. ठीक है. तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट स्ट्रेस इज़ यूनिवर्सल. ठीक है, देखिए चिंता करें या नहीं करें, स्ट्रेस तो होगा, है ना, यूनिवर्सल फिनोमेनन है. ठीक है, लेकिन इट इज़ नॉट ऑलवेज बैड. ठीक है. लर्न टू नो योर सिग्नल्स ऑफ स्ट्रेस, लिसन टू योर बॉडी. ठीक है ना, आपके मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस इफ़ दे आर गेटिंग अफेक्टेड, है ना, आपको भूख ज़्यादा लग रही है या कम लग रही है, आप कैसा फील कर रहे हैं, आपके हाउ डू यू फील, है ना. केयर योर रिलेशनशिप्स, अपने मदर से, अपने फादर से, अपने सिबलिंग से आपका रिलेशन कैसा, उन स्ट्रेसफुल कंडीशन में कैसा है. तो ये जो है आपको स्ट्रेस से डील करना, आपको खुद को डील करना है ना. सेट गोल्स इन योर लाइफ, अपने लाइफ के गोल्स को डिसाइड करें, कम्युनिकेट विद योर फीलिंग्स, थिंक पॉजिटिव. ठीक है ना, सकारात्मक सोच को रखें, एडप्ट टू चेंज. जैसी आपकी कंडीशंस हैं, जैसी आपकी परिस्थितियां हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश करें. एंड वन मोर थिंग, एक्सरसाइज रेगुलरली. ठीक है, योगा की हम जब बात करते हैं, योगा कई चीज़ों का जो है सॉल्यूशन है. ईट वाइजली, है ना, बिंज ईटिंग नहीं करना है, टीवी के सामने बैठ के खाना नहीं है, अपने को जितना भूख हो उतना ही लेना है. टेक टाइम टू रेस्ट, रिलैक्स एंड हॉबीज़. ठीक है, आप अपने रेस्ट करिए, अपना रिलैक्स करिए, आपके जो शौक़ हैं उनको आप पूरा करिए. आपको जो भी लूडो, शतरंज, क्रिकेट, आउटडोर गेम्स हों, इंडोर गेम्स हों, उनमें इन्वॉल्व होइए.
हाँ, सो इट रिलैक्सेस यू. डोंट हेजिटेट टू टेक प्रोफेशनल एडवाइस. अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आप स्ट्रेसफुल कंडीशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो आप जो है यू कैन टेक द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर्स एज वेल एज द साइकेट्रिस्ट. तो मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया भी था कि देयर इज़ अ वेबसाइट लॉन्च्ड बाय MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, कि उन्होंने जो है मनोदर्पण एक वेबसाइट लॉन्च की, जिसमें कि आपके 24 आवर्स जो है, आप जब भी स्ट्रेस्ड फील करें, डिप्रेस्ड फील करें, तो आप उनकी एडवाइस, उनको एक टोल फ्री नंबर मैंने आपको दिया था, उस पर आप कॉल करके अपनी समस्या का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं. ठीक है ना. सो डोंट हेजिटेट टू टेक प्रोफेशनल एडवाइस. तो यू सी, द वर्ल्ड वी हैव क्रिएटेड इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ आवर थिंकिंग. ठीक है ना. हम जो सोचते हैं वही हमारी दुनिया है. इट कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट चेंजिंग आवर थिंकिंग. अगर आप पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो सारी दुनिया जो है बहुत खूबसूरत नज़र आएगी ना. सो स्टॉप स्ट्रेसिंग एंड स्टार्ट लिविंग. तो in my next lecture I will give you some management techniques to handle this stress. So see you there. Goodbye. Have a nice time.